رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلوات. اللهم صل على پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعهم علی مشیتہ اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم فی سبیل محبتہ. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. یہ ہمارے محافل خمسہ جو ہے وہ امام جناب سجاد علیہ السلام کے مخصوص دعاؤں کے حوالے سے کہ جس صحیفے کا نام صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے، آج ہم سرکار کے ان کلمات پر پہنچے. 3 دن جو پچھلے کلمات تھے وہ میں نے ان پہ تھوڑی سی بحث کی. آج سرکار ایک عجیب طرز سے خدا گواہ ہے کہ مانگ دعا رہے ہیں، بیان توحید و نبوت و امامت کر رہے ہیں. پورے ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا دین لفظوں میں بند کر دیا. صرف دین نہیں بند کر دیا، حق بھی بتلا دیا، راہ نجات بھی بتلا دیا. دعا میں راہ نجات بتا دی، دعا میں حق بتلا دیا. یہ ایک عجیب ہے کہ مانگی دعا جا رہی ہے اور لفظیں ایسی کہی جا رہی ہیں جن میں حق نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا. لیکن یہ باتیں اتنی جلدی سمجھنے والی نہیں ہیں. جس طرح میں نے کوشش کر کے موتی نکالے ہیں، آپ کی جستجو بھی میرے ساتھ رہی تو پھر مل کے ایسے گوہر نکالیں گے، پتہ لگے گا کہ اللہ کیا ہے، آل محمد کیا ہے. اب امام فرما رہا ہے الذی، وہ ہے الذی، جو ہوا کو بیان کرے اسے الذی کہتے ہیں. وہ ہے هو الذی. ہوا کو کس میں تشریح کر دی؟ الذی. معلوم ہوتا ہے الذی کہہ دے یا ہوا کہہ دے بات ایک ہے. اب امام نے یہاں ہوا کی لفظ نہیں فرمائی. الذی وہ ہے. کیسا ہے؟ الذی وہ ہے، کوئی ہے ذات. الذی
وہ کیا ہے ابتدع کہ جس نے پیدا کرنے کے پہلے نمونے کی ابتدا کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابتدع یہ بے دال عین سے ہے، حمزہ سے نہیں ہے. ابتدع کہ جس نے پیدا ہونے کی یا پیدا کرنے کی ابتدا کی. کیسے ابتدا کی؟ بقدرتہ الخلق کہ اس نے اپنی قدرت سے، بسم اللہ صحیح بسم اللہ، اپنی قدرت سے کس کو پیدا کیا؟ الخلق کائنات کو پیدا کیا. اپنی قدرت سے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، ابتداءً انوکھے طریقے سے پیدا کرنا. یہ مفعول مطلق آ رہا ہے. یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ ابتدا سے ابتداءً. یہ ابتداءً کیا ہے؟ مفعول مطلق. بالکل ایسے ہے کہ جیسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا طاہر رکھا ہے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. یہاں بھی خالق نے اپنی خلق کا کمال نمونہ دکھایا ہے. یعنی کھربہا انسان ہے، کسی کے انگوٹھے سے انگوٹھا نہیں ملتا، شکل سے شکل نہیں ملتی. خدا جانے بغیر نمونے کے بنائے ہیں کتنے نمونے. یہ غور نہیں فرمایا؟ پہلے نمونہ بھی نہیں ہے اور کتنے نمونے بنائے خالق نے، اتنی بنائے. اختراع ابتداءً پیدا کرنا، ابھی بحث کریں گے. پیدا کرنا. دوسرا واخترعہم، اور انہیں ایجاد کیا. کن کو ایجاد کیا؟ مخلوق. مخلوق کو ایجاد کیا. واخترعہم علی مشیتہ اختراعاً، اپنی مشیت کے مطابق انہیں بنایا، جیسے چاہا بنایا. مشیت کے معنی چاہا. جیسے دیکھیں لفظیں بھی مشکل ہیں اور مجھے پڑھنا بھی مشکل ہے، تو ابھی آپ مشکل بھی ابھی آپ سے گھبرائے ہوئے ہیں. واخترعہم، اللہ نے ان کو ایجاد کیا. کن کو؟ ہم کون ہے؟ مخلوق، کائنات. پوری کائنات کو کیا کیا؟ ایجاد کیا. علی مشیت ہی، جیسے اس کی مشیت تھی، اس مشیت کے تحت اس نے کس کو بنایا؟ پوری مخلوق کو بنایا. اختراعاً ایجاد کرنا. اب مخلوق کیا ہو گئی جناب؟ پیدا. آخر مخلوق جو پیدا ہوئی کیوں ہوئی؟ اب سوال ہوتا ہے مخلوق کو جو پیدا کیا آخر کیوں کیا؟ اپنے لیے تو پیدا کیا نہیں. خالق نے اپنی مخلوق، اپنی پہچان کے لیے تو مخلوق کو پیدا کیا نہیں. اگر اپنی پہچان کے لیے ہمیں بناتا تو ظاہر ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. تھوڑی سی توجہ فرما، میرے ساتھ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، کوئی اور مخلوق ہے جسے خالق نے اپنی پہچان کے لیے بنایا. اب ہمیں کیا کیا؟ بنایا. بنایا ہمیں ضرور، معلوم ہوتا ہے ہم بننے میں اس کی مشیت میں ہیں. مشیت میں تھے تبھی تو بنایا ہے. اگر اس کی مشیت میں ہم نہ ہوتے تو کیسے بنتے؟ اس کے علم میں ہم نہ ہوتے یا اس کی مشیت بنانے میں ہم نہ ہوتے تو کیسے بنتے؟ لیکن ہمیں بنایا ضرور ہے. اب پوری کائنات کو بنا دیا. اگر ایک لفظ میں کہہ دوں یہ سے بات سمجھ بھی آ جائے گی تو خالق کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب تو نہ ہوتا تو میں افلاک بناتا ہی نہ. اب کوئی تو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عالمین جو بنائے جا رہے ہیں، عالمین اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائے. اس کے بننے کا سبب یہ ذوات پاک ہیں. اگر یہ نہ ہوتی عالمین نہ بنتے، وہ نہ ہوتا 14 نہ بنتے. تو عالمین اس لیے بن رہے ہیں کہ 14 ہیں. 14 اس لیے ہیں کہ وہ ہے. جب تک وہ ہے 14 ہے، جب تک 14 ہے عالمین ہے. وہ علت ہے 14 معلول ہیں.
14 इल्लत हैं, आलमीन मालूम है। अच्छा चलो, आलमीन मालूम है, 14 इल्लत है, फिर ये इल्लत मालूम है, अल्लाह इल्लत है। अल्लाह 14 की इल्लत कौन है? अल्लाह। आलमीन की इल्लत कौन है? 14। और अगर बिस्मिल्लाह इल्लत ताम्मा मौजूद हो, जब इल्लत ताम्मा मौजूद हो तो मालूम का मौजूद होना जरूरी है। जब 14 की इल्लत खुद तौहीद है, फिर कौन सा वक्त है कि तौहीद ना हो और आले मोहम्मद ना हो? सही, जब इल्लत ताम्मा मौजूद हो सही, तो फिर मालूम का मौजूद होना जरूरी है। जब अल्लाह इनकी इल्लत मौजूद है तो दरमियान में फिर वक्त का क्या ताल्लुक है? जमाने का क्या ताल्लुक है? जमाना है ही नहीं, तब से आले मोहम्मद है, क्योंकि इल्लत जो मौजूद है। अच्छा चलो, बात मुश्किल है। इल्लत ताम्मा के वक्त मालूम का मौजूद होना जरूरी, सही से मैं मौजूद होना जरूरी है। तो जब इनकी इल्लत कौन है? अल्लाह। जब इनकी इल्लत अल्लाह है और 14 मालूम है, तो फिर जब इल्लत मौजूद होगी तो मालूम के ताखुर में अगर ताखुर हो गया, देर हो गई, तो फिर इल्लत की एहतियाज होगी, मालूम की एहतियाज नहीं। अगर अल्लाह मौजूद हो और आले मोहम्मद मौजूद ना हो, फिर वो मोहताज होगा, ना कि आले मोहम्मद। कि देर से क्यों समझ आती है? अच्छा, तो अब क्या हुआ कि इनको वख्ताराहुम अला मशीयत ही इख्तिराअन, मखलूक को, कायनात को, आलमीन को अल्लाह ने पैदा किया, अपनी मशीयत इरादे के तहत बना दिया। अब क्या किया? जब बना दिया ना, अब बन गए मखलूक। तो जो फरमाई से ये 2-4 जुमले मैंने आपको अर्ज किए कि अब क्या कहता है? सुम्मा सलका बिहिम, इस पूरी मखलूक को अल्लाह ने एक मसलक पे चलाया। मसलक किसे कहते हैं? दीनी रास्ते का नाम मसलक है, दुनियावी रास्ते का नाम रास्ता है, दीनी रास्ते का नाम मसलक है। अल्लाह ने इस पूरी मखलूक को मसलक पे, एक मसलक पे चलाया। मालूम होता है पैदा होने से पहले मसलक मौजूद है। इसी मसलक को दीन भी कहते हैं, सिरात मुस्तकीम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दीन भी कहते हैं। इसी दीन को सिरात मुस्तकीम भी कहते हैं। सिरात मुस्तकीम ही का नाम मसलक है। फिर अल्लाह ने चलाया, किसको? कायनात को चलाया। अब दुनिया ना समझे तो हम क्या करें? मालूम होता है खल कभी पहले पैदा ही नहीं हुई, अल्लाह का दीन और मजहब सिरात मुस्तकीम पहले से मौजूद है। सुम्मा साला का, फिर अल्लाह ने इनको पैदा करके क्या किया? इनको चलाया। पैदा करने के बाद रास्ता नहीं बनाया, ये पैदा हो चुके थे, हुए तो इनसे पहले उसका रास्ता, उसका दीन पहले से मौजूद। सुम्मा साला का, इनको चलाया किस पर? बिहे मखलूक को अला तरीका, तवज्जो फरमाए, अला तरीका इरादत ही, अपनी इरादे के एक रास्ते पर। मालूम होता है 73 रास्ते नहीं होते। और ये यही बुलंद फरमाए ना यार, ये क्यों हो गया? साला का बिहिम तरीका इरादत ही, अपनी इरादे के तरीके पर। तो अल्लाह के इरादे का जो तरीक होगा, कितनी होंगे? एक होगा बाबा। अल्लाह का जो तरीका होगा, मसलक होगा, मजहब होगा, सिरात मुस्तकीम होगा, कितने होंगे? दीन कितने होंगे? एक। सिरात मुस्तकीम कितने होंगे? एक। जब एक होंगे तो अपने इरादे के तरीक पर इनको चलाया। तो अल्लाह का तरीका एक ही है ना। आप कुरान कहता है इन्ना रब्बी अला सिरातम, कुल मेरा हबीब कह दो इन्ना रब्बी अला सिरातम मुस्तकीम, कह दो मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। अब देखे दुनिया सिरात मुस्तकीम कौन है? 14 कहते नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, अल्लाह का सिरात मुस्तकीम हम है।
अल्लाह का सिरात मुस्तकीम कौन है? 14 है या नहीं है? 14 है, इसीलिए तो 14 के सिरात मुस्तकीम के लिए क्या कहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब मैं खुदा के लिए दुनिया से कहता हूं, जब हमारे इस पैदा होने से पहले ये रास्ता मौजूद है, फिर तर्जुमा ये कतन होगा ही नहीं कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखाओ। ये तर्जुमा होगा ही नहीं कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा का तर्जुमा नहीं होगा। हम चल रहे हैं साबित कदम रख, हम चल रहे हैं, लिहाजा हमें साबित कदम रख। इसीलिए जब साबित कदम रखने की दुआ मांगते हैं और वो कबूलियत की तरफ जाती है, तो बाद में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन कहना दलील है, नमाज में बातिल हो जाना है। आमीन वहां कही जाती है जहां अभी शायद मिली ही ना हो, अभी वो शायद मिली ही ना हो। वहां जिन्हें अभी तक सिरात मुस्तकीम ही नहीं मिला, तो उन्हें जन्नत कैसे मिलेगी? देखिए इमाम ने क्या क्या, क्यों देर से क्यों समझ आ रही है? शाह जी क्या वजह है? मेरे बुजुर्ग लोग मुझे फरमाते रहते कि जरा हाथ हौला रखिए, ये भी फरमाते, अब क्या करूं? सुम्मा, लेकिन ध्यान तो करना, सुम्मा साला का बेहम, फिर इनको चलाया अल्लाह, सुम्मा साला का बेहम तरीका इरादत ही, अपने इरादे के रास्ते पर। तो फिर अल्लाह का इरादी रास्ता कौन सा है? सिरात मुस्तकीम एक ही है ना, तो वो किन का रास्ता है? जो खल्क से पहले हादी मौजूद होंगे, जो खल्क होने से पहले हादी मौजूद होंगे, उनका रास्ता अल्लाह ही का इरादी रास्ता होगा। अब देखें वो खल्क कौन है? जो खल्क से पहले है वो कौन है? फरमाया अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क, अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क व मा अल खल्क व बाद अल खल्क। मेरा मासूम कहता है हुज्जत वो होता है जो खल्क से पहले हो, जो खल्क से भी पहले दीनदार हूं, उन्हें सिरात मुस्तकीम कहे। वो कौन है? आले मोहम्मद। सुम्मा साला का बेहम, फिर इनको चलाया। देखिए चला इख्तियारी तरफ चलाया, कहने के बाद दोस्त है, खाली इमाम की दुआ दोस्त है, उसे तो चलाना है, इख्तियार दे के चलाना है। इख्तियार दे दिया, चलो जाना चलो। सुम्मा साला का बेहम तरीका इरादत ही, कि उसके अल्लाह के इरादे के तरीक पर इन मखलूक को चलाया। अब चलाया तो नमूना तरीक चलाने का नमूना कौन होगा? मसलक का ताल्लुक कैसे होता है? दीन का ताल्लुक कैसे होता है? और मजहब का ताल्लुक कैसे होता है? अच्छा मैं समझिए तो बात आसान है। दीन का ताल्लुक रसूल से होता है, मजहब का ताल्लुक इमाम से होता है। दीन और शरीयत रसूल पहुंचाता है, इमाम हिफाजत करता है। इमाम का काम हिफाजत करना है। मजहब इमाम से चलता है, शरीयत रसूल से चलती है। दीन रसूल से चलता है ना बाबा, दीन का ताल्लुक रसूल से होता है, मजहब का ताल्लुक इमाम से होता है। इसलिए मजहब जाफरी है, मजहब मोहम्मदी नहीं है। क्या ठीक है ना? इसी वजह से जो इमाम होता है इमाम। अब जनाब साला का बिहिम, उनको खालिक ने चलाया तरीका इरादत ही, अपने इरादे के तरीक पर। फिर वबासहुम, बहुत अच्छी बात आई, वबासहुम फी सबीले मोहब्बत ही। मैं कुर्बान हो जाऊं, इतनी बड़ी इस्तियारात से इमाम ने जुमले फरमाए हैं कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के सबील पर इस मखलूक को उभारा। उभारा समझते, बरअंगेख्ता किया, उन्हें पुरजोश किया। बासहुम, उनको क्या किया? पुरजोश किया। किनको किया? मखलूक को पुरजोश किया। बासहुम, हम बे आइन से बासा, अभी बासा में बस कर, बासहुम
फी सबील मोहब्बत ही, अपनी मोहब्बत की सबील में उनको उभारा। तो मालूम हुआ अभी मखलूक से पहले उसकी मोहब्बत की कोई सबील थी। सही मोहब्बत होगी ना या नहीं होगी? किनको उभार रहा है? मखलूक को। जब मखलूक को उभार रहा है तो मोहब्बत की सबील होगी या नहीं होगी? आप दुनिया ढूंढे अल्लाह की मोहब्बत की सबील कौन है? कौन है वो मोहब्बत की सबील? मोहब्बत का मरकज कौन है? मोहब्बत की सबील कौन है? अगर दुनिया को नहीं मालूम तो ना मालूम हो। सभी अल्लाह मोहब्बत की सबील में ये काकी जब है तो वो अल्लाह नहीं होगा, कोई वो अल्लाह के अलावा होगा जिसकी मोहब्बत की सबील दीन इलाही की सबील होगी। मोहब्बत इनकी होगी, इनकी नहीं, गोया अल्लाह की होगी। इनकी मोहब्बत, किनकी मोहब्बत होगी? अल्लाह की। आय अल्लाह अब तू बता तेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया मेरी दीन से, क्योंकि मेरा दीन है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। अगर इसी दीन का अज्र कुर्बा की मोहब्बत हो, शादी इस दीन का अज्र क्या हो? पूरी रिसालत का अज्र क्या हो? मवद्दत फिल कुर्बा। और वो कुर्बा कौन है? फातिमा सैयदा। तो मालूम हो गया मोहब्बत का मरकज फातिमा है। और मैं जरूर बिल्कुल मैं जरूर कहूंगा जब मोहब्बत का मरकज फातिमा है तो अजर रिसालत किसकी मोहब्बत है? फातिमा की। यही वजह है कि नमाजी को हुक्म से पढ़वाया, सैयदा की मोहब्बत सवाली बन के मांगी है। बीबी की मोहब्बत कैसे मांगी है? अल्लाह ने क्या मांगी है? सवाली बन के मांगी है। मांगी है या नहीं मांगी? मेरा हबीब मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल इनसे मवद्दत का। किन की मवद्दत का? बीबी की मवद्दत का। कौन कर रहा है सवाल? अल्लाह। और सवाली सामने कौन है? रसूल। फिर नमाज सवाली से नहीं, नमाज हुक्म से पढ़वाई है, रोजे हुक्म से रखवाए हैं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं जुमला जरूर कहूंगा। जब पूरी रिसालतों का अज्र बीबी की मोहब्बत होगी तो फिर कयामत में पहला सवाल नमाज का नहीं होगा। जब इनकी मोहब्बत है तो फिर अव्वलीन पुरुष से नमाज मवाद कहां होगा? ये क्यों कहा गया कि सबसे पहले क्या पूछी जाएगी? नमाज नहीं पूछी जाएगी। अगर नमाज होती आज्र तो फिर आज्र इनकी आज्र नमाज होती। नमाज आज्र नहीं है, रोजा आज्र नहीं है। अगर ये न हो ना नमाज है ना रोजा है। इनकी मोहब्बत के बगैर न नमाज मुकम्मल है, न रोजा मुकम्मल है, न हज मुकम्मल है। तो फिर अल्लाह की सबील मोहब्बत कौन है? हाँ, अल्लाह की सबील मोहब्बत। अब सुम्मा बादशाह इनको उभारा, जोश दिलाया। किसके लिए जोश दिलाया? अल्लाह सबील मोहब्बत ही, अपनी मोहब्बत के सबील। अब मासूम फरमाते नहनो सबीलुल्लाह है, जो उसकी मोहब्बत की सबील है वो हम ही तो सबील है। सुबह निजाम खुदा की कसम, ये सारा निजाम इन्हीं आले मोहम्मद के गिर्द घूम रहा है। सही। अब मैं इसी पहलू को, अब मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका खाके पा खादिम हूं, लेकिन मैं बहस करूंगा, आप कुरान जाके खुद देखेंगे, मेरी बहस सुने, टेप भी हो रही है, कई गलती होगी सही से मैं पूछ लूंगा। पहले मेरी बात समाज फरमा लीजिए, जाके तफसीर देख लीजिए, फिर पता लगेगा हक किसे कहते। ठीक है सर।
یہ سبیل محبت ہی، یہ جو 14 معصومین ہیں، صحیح 14 معصومین، انہیں کب ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے، عالمین کے لیے، اچھا ذرا پھیلا کے معصوم، ایک ہوتی ہے غرض خلقت اور ایک ہوتی ہے غرض بیست۔ غرض خلقت، ان 14 کی غرض خلقت، صحیح توجہ فرمائیں، ان 14 کی غرض خلقت معرفت توحید ہے۔ اللہ نے ان 14 کو بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، اپنی پہچان کے لیے انہیں بنایا ہے۔ یہ کن کی پہچان ہے؟ توحید کی۔ ہمارے لیے نہیں بنایا، اگر ہمارے لیے بنائے تو پھر ہم افضل ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے جو بنایا ہے ہم افضل ہو جائیں گے، مکان انسان کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم افضل ہو جائیں، اس لیے ان کو جو خالق نے بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے۔ ان کی غرض خلقت توحید ہے، رہ گئی غرض بیست۔ یہی میرا اختلاف ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ پوری توجہ فرمائیں، یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ موضوع جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، ابھی بھی ٹیپ بھی ہو جائے گا، اچھی بات ہے، کبھی بیان نہیں ہوا، صحیح میں بہت بڑی التجا معافی سے بھی کہوں گا، پہلے میری بات سنتے رہے پھر بات مجھے فرمائیں۔ ان 14 کی جو غرض بیست ہے، اولاً بالذات مقصود بیست، ان 14 کا مقصود بیست، بیست مانے ان کا مبعوث ہونا بحیثیت رسول، بحیثیت رسول کا مبعوث ہونا بحیثیت رسول اولاً آل محمد کے لیے ہے۔ صحیح توجہ فرمائیں، ان کا مقصد بیست، مقصد غرض بیست 14 کے آنا، رسول کے آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ آل محمد کے لیے آئے ہیں، پھر عالمین کے لیے، اہل مکہ کے لیے، عجم کے لیے، کائنات کے لیے بالعرض آئے ہیں، ثانیاً آئے ہیں، دوسرے نمبر پر عالمین کے لیے آئے ہیں، پہلے نمبر پر آئے ہی آل محمد کے لیے ہیں۔ پہلے اب میری بات سماعت فرما لیں، یہ ان کا غرض بیست کون ہے؟ آل محمد، اور پھر عالمین کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے ان کو بھیج کر، ہمیں کہا اس لیے کہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا، یہی تو میرا احسان ہے، اپنی شان میں نے تمہیں دے دیا۔ کہ بنایا میں نے اپنے لیے تھا اور میں نے تم میں بھیج دیا، یہ احسان ہو گیا، لیکن اس احسان میں جو غرض بیست اولی ہے، اولاً بالذات مقصود بیست معصومین ہیں، بعد میں بالعرض ثانیاً عالمین ہیں۔ اب میں دعا پڑھتا ہوں، اب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو جناب ابراہیم بلند کر رہے تھے، جن کے گھروں کو معصوم بنایا، اہل بیت کیسے ہوں گے؟ اللہ بیت بن رہا، اس بیت میں پتھر اٹھانے والا جبریل بھی شامل ہے، وہ اللہ تجھے اور آدمی نہیں ملتے، فرشتے جبریل کو بھیج دیا تاکہ پتہ تو چلے جن کے گھر کے بنانے والے معصوم ہو تو آنے والا کتنا معصوم ہوگا۔ اچھی بات ہے، ہاں اچھی بات ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو کتنے ہیں؟ اسماعیل، صحیح آپ تو وہی ہیں، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھروں کی دیواروں کو، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کیا کبھی رد کی ہے؟
इन्नका अंत समीउल अलीम, तू समी भी है, सुनता भी है, हमारी बात गौर से भी सुनता है। अब गौर क्या करें, रब से आती है आपको समझाने के लिए, वहाँ गौर का तसव्वुर तो नहीं है भाई यार। सुनने वाला भी है और समी भी है और अलीम भी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह हम दोनों को, इब्राहिम और इस्माइल दोनों मासूम फरमा रहे हैं, हमें अपना करे ना कर, नहीं यार हम सारा मैं करूं, कुछ आप भी तो हिम्मत कर ले, कुछ थोड़ा सा आप ही मेरे साथ। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, कि हम तेरे मुसलमान हूं। क्या पहले नबी रसूल हो के मुसलमान नहीं थे? इलाजा में कौन सा इस्लाम का ये दुआ मांग रहे? ये इस्लाम बिला वास्ता है बाबा इनका, या कोई वास्ता इनके लिए? ये क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें हम दोनों को अपना मुसलमान बना, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी से मुराद क्या? इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हमारी ज़ुर्रियत में से किनको बना? उम्मतम मुस्लिमतन लक, ऐसी उम्मत बना जो बगैर वास्ते के इस्लाम लाई हुई हो। नहीं फरमा रहे, ये वो उम्मत है जो बगैर वास्ते के इस्लाम लाई हुई है, बगैर वास्ते के। अब ये ना कहना कि अली बचपने में इस्लाम लाए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, हमारी ज़ुर्रियत में से किसको बनाओ? उम्मतम मुस्लिमतन लक, उनका इस्लाम भी ऐसे जैसे तेरी जात बिला वास्ता मुसलमान बना, उनको क्या बना? उम्मतम मुस्लिमतन लक। तो मालूम हुआ जनाब इब्राहिम किसकी दुआ मांग रहे हैं? एक उम्मत मुस्लिमा की, मुसलमान इस्लाम वाली उम्मत की। बोझ तो नहीं हो रहा शायद? अब तो आसान है ना, अब तो आसान है। मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम, ऐ अल्लाह भेजना, रब्बना वबअस फीहिम, हिम की ज़मीर किधर जा रही है? उम्मत मुस्लिमा की तरफ। किसमें भेज? आलमीन में नहीं। उम्मत रब्बना वबअस फीहिम, इनमें भेज, उम्मत मुस्लिमा में भेज। किसको भेज? रसूलन मिनहुम, एक उन्हीं में से रसूल भेज। जैसी वो उम्मत मुस्लिमा है, उसी सही जो उम्मत मुस्लिमा है, उसी उम्मत मुस्लिमा में से ही, यानी उन्हीं के अफराद में से ही एक रसूल भेज। यही वजह है कि जनाब इसहाक की औलाद में सारे नबी आए, लेकिन जनाब इस्माइल की औलाद में एक ही तो यही नबी हैं। सरकार इस्माइल की नस्ल पाक में जितनी पहले आए हैं, उन्हें नबी का होदा नहीं दिया, उन्हें वली का होदा दिया है। क्योंकि नबी एक होना, रसूलन मिनहुम, एक रसूल। गौर नहीं फरमाए? कितनी रसूल? रसूलन, रसूल नहीं, रसूलन मिनहुम, एक रसूल भेज। यतलू अलैहिम आयाते का, जो उन पर तेरी आयात की तिलावत करे। अभी बहस करें। यतलू अलैहिम आयाते का व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, कि वो उन्हें किताब की तालीम दे, सुनाए नहीं, तालीम दे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, हिकमत की भी तालीम दे और इल्म की भी, किताब की भी तालीम दे। अगर मैं जल्दी से यहाँ जुमला कह दूं तो वो फिर बहस करेंगे दोबारा कि तालीम और हिकमत का देने का यह मेयार हुआ, रसूल को कहना पड़ा अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलियुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। जो इल्म और हिकमत का एक ही दरवाजा हो उसे अली कहते हैं। इल्म और हिकमत के कितनी, एक ही तो दरवाजा है, उस एक दरवाजे को क्या क्या? अली। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम,
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अब ये रसूल किस में आए? सही किस में आए? उम्मत मुस्लिमा में आया। ठीक, कौन आया? एक रसूल आया। और किन में से आया? उन्हीं अफराद में से आया। मालूम हो गया, जिन में से वो आया वो रसूल ही जैसे अफराद हैं। अब हमें क्या खबर वो रसूल जैसे है या नहीं है? फरमाया मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दूसरा भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। अगर मैं जुमला जल्दी से यहाँ कह दूं तो आपको फिर ये से बात तो निकल जाएगी। फिर आए दूसरी बढ़ते हैं, कौन सा नबी यौम आदम बैनल माए वक्ती, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम आबो गिल में थे। मालूम क्या नबी होना दलील है, कोई उम्मत वहां जरूर मौजूद है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर नबी पहले से मौजूद हैं तो नबी होता है खबर देने वाला। किन को खबर दे रहा है? कोई तो उम्मत मौजूद है। मालूम हुआ, जब नबी थे, बने नहीं थे, मैं नबी था। जब नबी थे तो उस वक्त कोई उम्मत होगी या नहीं? अब मैं जुमला कह दूं, बाबा जिसकी उम्मत अबुल बशर से पहले हो, रसूल बशर होगा। है जिस रसूल की उम्मत अबुल बशर से पहले हो, क्या वो रसूल बशर होगा? वह बशर क्या होगा? तो अब मालूम हो गया कि रसूल की जो उम्मत होगी, ये उम्मत कौन सी है? बिल्कुल रसूल जैसी। उन्हीं में से वैसे दिलचस्पी तो मैं देख रहा हूं, कोई घबरा जाए, जरा भयंकर सलावत पढ़ देंगे। अल्लाह अब सही मैं ऐसी वो पढ़ता हूं कि आप हर जुमे में वो आयत पढ़ते, जुमे में आयत पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना बाबा। जुमे की तो तर्जुमा तो आना चाहिए ना यार, या फिर मौलाना साहब पे इसके पीछे खड़े हैं, ठीक है चलो ये नहीं, जुमा पढ़ते हैं या नहीं? अब जुमा की आयत को मैं पढ़ता हूं, बात आ जाए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन, सही तवज्जो फरमाए। हुवल्लज़ी वो है, बाअसा फिल उम्मिय्यीन, कि जिसने उम्मिय्यीन में भेजा। ये उम्मीयीन कौन है? ये उम्मी को आप अनपढ़ कहते हैं, उम्मीयीन इसी से रसूल को उम्मी भी कहते हैं, या मक्के वाले कहते हैं, या मक्के वाले मुराद नहीं है, या अनपढ़ मुराद नहीं है। आने वाला आने वक्त में अगर अनपढ़ है तो फिर अल्लाह जाहिल में भेजा क्यों है तुमने? ये उम्मीयीन कौन है? सही, हुवल्लज़ी वो है, बाअसा फिल उम्मिय्यीन, कि जिसने उम्मियीन में भेजा। क्या भेजा? बिस्मिल्लाह रसूल, ये तकिया ले लो, सही सारा हो जाएगा। उम्मियीन, उम्मियीन में उम्मी आपको ये तफसीर में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ रहा हूं। ये ऐसी नायाब शायद फिर अगर तवज्जो नहीं फरमाएंगे दुख होगा या नहीं। उम्मियीन, मैंने उम्मियीन में भेजा। क्या भेजा? रसूलम मिनहुम, एक रसूल भेजा उन्हीं उम्मियीन में से। मालूम होता उम्मियीन का मेयार भी रसूल जैसा है। उन्हीं में से जो मिनहुम फी की मदासी, मिनहुम उन्हीं में से मैंने जो रसूल भेजा। अब ये उन्हीं में से हमें बताया जाएगा ये में से रसूल के कौन है? फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अली मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब मिन्नी की लफ्ज़ हमें मालूम हो गई। रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से हमने, उम्मीयीन में से हमने, मैं बहुत बड़ी बहस कर रहा हूं सरकार, तो उन्हीं में से हमने एक रसूल भेजा, एक रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से रसूल भेजा। किन में भेजा? उम्मीयीन में भेजा। ये उम्मीयीन आम अवाम नहीं है, मक्के वाले नहीं हैं, बाद में मक्के वाले आएंगे। अव्वलन बिल मकसूद
बेसत नबी रसूल इन उम्मीजीन में है। उम्मीजीन कौन है? ये आप मेरा मासूम फरमाता है, नहनु उम्मतुन उम्मीयतुन ला नक्तुब वला नक़रअ, हम वो उम्मी उम्मत है, ना किसी से पढ़ते हैं ना किसी के लिखवाने से लिखते हैं। ये कौन? नहनु उम्मतुन उम्मीयतुन। उम्मी के माने हम क्या कहते हैं? उम्मी के माने हम अनपढ़ कहते हैं। उम्मी के माने अनपढ़ के नहीं है, उम्मी के माने है जो ना किसी से लिखना सीखे ना किसी से पढ़ना सीखे। ये होता है उम्मी, ना किसी से। उम्मी के माने अगर आप अनपढ़ के करें तो फिर रसूल का क्या मेयार होगा बेशक का? क्या अनपढ़ों में भेज दिया? जो अनपढ़ों का इम्तियाज ना करे, इतने बड़े आलम को भेज दे तो भेजने वाला आदिल कहां होगा? ये उम्मत मुस्लिमा है, वो उम्मत मुस्लिमा जिसकी दुआ जनाब ने फरमाई थी, उम्मत मुस्लिमा जो बिना वास्ता इस्लाम रखते हूं उनमें भेज। ये उम्मत मुस्लिमा कौन है? उम्मी जी। ये ना किसी से लिखना सीखते हैं ना किसी से पढ़ना सीखते हैं। इन उम्मीजीन में भेजा, उम्मीजीन में, उन्हीं में से भेजा। अच्छा, फिर पलट की एक बात कहनी है, मैं जरा फिर कहूं। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीजीन, कि उसने उम्मीजीन में मबूस किया। मबूस किया उस वक्त किया जब उनकी उम्र मुबारक 40 साल हुई। अब आप मेरे साथ ज़हन मिलाए, मैं जुमला कहूं। अब जब इनको इसी उम्मत में मबूस किया, मालूम होता है ये जो मबूस होने वाला रसूल है, ये जो आ रहा है जिस उम्मत में, फिर पैदा किस उम्मत में हो रहा है? ये रसूल खुदा पैदा कहाँ हो रहे हैं? किसी गैर उम्मत में पैदा हो रहे हैं। अब तवज्जो तो फरमा नहीं रहे, मुझे आज समझ नहीं आ रही। ये उम्मत में जो रसूल पैदा हुए हैं, किसके घर पैदा हुए होंगे? जो उम्मते उम्मीजीन में मबूस हो रहा है, वो पैदा कहाँ हो रहा है? मालूम हुआ जिस घर में ये पैदा होगा वो भी घर उम्मी होगा। अबू तालिब अनपढ़ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? जनाब अबू तालिब अनपढ़ थे, उम्मी थे। उम्मी, उम्मी के माने ना किसी से पढ़े हैं ना किसी से लिखे हैं। मैं दलील दे दूं जनाब, दलील दे दूं। जनाब अबू तालिब उम्मी, उम्मी के माने ना किसी से लिखा है, लिखना सीखा है, ना पढ़ना सीखा है। इसी दलील से तो रसूल ने कहा, अबू तालिब मेरे निकाह का पढ़ने वाला वकील तू है, कभी भी जाहिल रसूल का निकाह नहीं पढ़ सकता। निकाह कौन पढ़ा है? रसूल खुदा का। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है। खुदा की कसम इनका निकाह पढ़ना दलील है कि ये उम्मत मुस्लिमा के मरकज यही है। उम्मत मुस्लिमा का मरकज कौन है? जनाब अबू तालिब। अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ना होते, जनाब अली कहाँ होते? जनाब अली ना होते, सैयदा कहाँ होती? सैयदा ना होती, हसनैन कहाँ होते? हसनैन होते, 14 कैसे मुकम्मल होते? कौन है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा है या नहीं पढ़ा? किनका निकाह पढ़ा है? उसका जो उम्मी है। अब हम मैं अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाह तेरी मर्जी से रसूल ने वकालत दी अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। अगर अबू तालिब भी अनपढ़ में आता है तो उम्मी का निकाह का वकील क्यों बनाया तूने? आप कहाँ बैठे हैं? मैं जुमला कह दूं, जनाब अबू तालिब ने सबसे पहले जब पढ़ना शुरू किया दलील दे दी, मैं उम्मी
अनपढ़ के मानू में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। अलहम्द कौन पढ़ने वाला है? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अलहम्द उस वक्त पढ़ी है जिसमें सारा कुरान है। अभी कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, पहले पढ़ रहा है। किसने पढ़ाया है? और आपकी इत्तला के लिए आप खामोश तो है, इत्तला के लिए मैं रखता हूं, ये खुतबा किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सही मैं जुमला कहूं, खुदा के लिए लिख ले दिल के ऊपर, ये जो खुतबे की खुतबा निकाह का सुन्नत हो जाना, ये सुन्नत अबू तालिब है, सुन्नत रसूल नहीं है। मैं क्या कहूं? जिसको आप सुन्नत करार दे रहे हैं निकाह में, ये कौन है पढ़ने वाला? आप फरमाए कौन है निकाह पढ़ने वाला? ये किन की सुन्नत है? रसूल की। रसूल ने तो पढ़ा ही नहीं है। सुन्नत हमेशा रसूल की होती है। मालूम होता है ये जो सुन्नत बनी है अबू तालिब की वजह से बनी है। काफिर का अमल कभी भी सुन्नत रसूल नहीं बनता। ऐसा कहूं जोर से दूं, मैं मुनाजरा नहीं फिर दिल हाथ बांध के बात करूं। इसी वजह से हम जब भी निकाह पढ़ते हैं जनाब अबू तालिब की सुन्नत पर अमल करते हुए खुतबा निकाह पढ़ते हैं। अब हमें मालूम हुआ कि खुतबा निकाह क्यों नहीं पढ़ा जाता। ना किसने पढ़ा खुतबा निकाह? फरमाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन ज़र्र इस्माईल। हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल से हमें बना के इस दुनिया में भेजा। कौन है? मरकज कौन है? अब जहां ये रसूल पैदा हुआ वो घर क्या होगा? उम्मत मुस्लिमा होगा या नहीं? इसलिए फरमाया तकल्लुबा का फी साजिदीन। इस उम्मत मुस्लिमा को हम साजिदीन में मुंतकिल कर रहे हैं। क्यों साजिदीन आया? बासफीहिम, उनमें क्या भेजा? रसूलन मिनहुम। हाय हाय शाहजी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। एक आयत आगे पढ़ते नहीं क्या शाहजी? खरे कहा जाए रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सही हाथ बांध के खुदा के लिए अब तवज्जो फरमाएं। मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। वइन कानू मिन क़ब्लो लफी ज़लालिम मुबीन। क्या तर्जुमा है? करें तर्जुमा? करें ना जनाब। अब तर्जुमा मुझे सही से मुझे दिखला दे। उम्मीजीन कौन है? रसूल जैसे उम्मी है। सही रसूल जैसे उम्मी है या नहीं? घबराए नहीं, घबराए, मैं पूरा मुकम्मल करके छोड़ूंगा जनाब, ऐसे नहीं। उम्मीजीन कौन है? रसूल जैसे। वइन कानू मिन क़ब्लो लफी ज़लालिम मुबीन। आप जाके कुरान देखे, इनसे पहले वो खुली हुई गुमराही में थे। ये कौन है गुमराही वाले? उनमें भेजा। सही ये तर्जुमा लिखा हुआ नहीं है तो मुझे कल आप देख के आ जाइएगा, मुझे बता दीजिए। अगर आपके पास कुरान नहीं है तो मेरे पास तो है, आप मैं दिखा सकता हूँ। वैन कानू मिन कब्ल कानू कौन है? उम्मीजीन। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। ये कानू की जमीर किधर जा रही है? उम्मीजीन में भेजा ना। ये उम्मीजीन कौन है? जिन उन्हीं में से एक रसूल भेजा, उन जैसा रसूल भेजा। अगर हम ये तर्जुमा करें वो तो खुली हुई गुमराही में थे, माज़अल्लाह गुमराहों में पहला रसूल भेजा। सही क्या भेजा? गुमराहों में भेजा। अल्लाह तूने पहला आखिरी और पहला रसूल, इतना बड़ा आलमीन का रसूल गुमराहों में भेजा तूने। ये क्या तर्जुमा हुआ?
शायद क्या तर्जुमा हो इसका? ये तर्जुमा है कि इनकार मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अच्छा जरा आगे वाला तर्जुमा, व आखरीना मिनहुम, और कुछ उन्हीं में से बाद में आएंगे, लम्मा यलहक़ू बिहिम, वो अभी इनसे मुल्हक नहीं हुए। आखरीना कुछ आए जो बेशक के वक्त नहीं थे, इन उम्मीदीन में भेजा बेशक के वक्त नहीं थे, ठीक है। आखरीना मिनहुम, कुछ है जो बेशक के बाद आके इनसे क्या होंगे? मुल्हक होंगे। लम्मा यलहक़ू बिहिम, अब देखें लम्मा किसके लिए आता है? लम्मा तवक्को के लिए भी आता है और इंतजार के लिए भी आता है। मालूम होता है जो मुल्हक होने वाले हैं इस उम्मत के साथ बाद वाले, उनकी तवक्को भी है और इंतजार भी है। आज जिनका इंतजार खुद खुदा कर रहा है वो उम्मी है। कौन है जिसका इंतजार आज खालिक कर रहा है? फंतज़िरूनी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी कर रहा हूं। कौन है जिसके इंतजार में खालिक है? आप भी है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इस वक्त भी। कौन है? आए अल्लाह बता तो सही वो है कौन? कौन है? कोई तो है ना यार। अल्लाह नहीं है, रसूल भी नहीं है, इन उम्मीदीन में से एक है। उम्मीदीन में से एक है जो अभी मुल्हक नहीं हुआ, इंतजार में है। इमाम ज़माना है या नहीं है? वो हमारा इमाम ज़माना है, वो उनके साथ मुल्हक होगा। तो उसी उम्मीदीन में कौन आ रहा है? इमाम ज़माना। जब इमाम ज़माना इस जिसके इंतजार में है, इमाम सरकार की बेशक के बाद कितने इमाम बाद में मुल्हक हुए? सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार हसन मुश्तबा जनाब अली अलैहिस्सलाम के बाद बाकी इमाम तो बाद में आए ना, बेशक के बाद आए हैं ना। जब ऐलान नबूवत हुआ तो बेशक बाद में आए ना, ये शहजादे मौजूद थे। सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन 38 हिजरी में, फिर सरकार बाक़र अलैहिस्सलाम 57 हिजरी में, इसी तरह 65 हिजरी, इसी तरह बाद में तो इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो जब बाद में आए हैं तो उस वक्त ये मुल्हक हो रहे हैं किन से? उम्मीदीन से। और आखिरी है जिसका इंतजार है। तो फिर उम्मीदीन कौन हुए? ये मासूमीन है। उम्मीदीन ने रसूल भेजा। अगर उम्मीदीन का तर्जमा हम माज़ल्ला व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर खुली गुमराही करे तो ना अगला तर्जमा सही ना पिछला तर्जमा सही, क्योंकि आगे भी खालिक कह रहा है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा, यही तो फजल है अल्लाह का, जिसे चाहे अता करता है। क्या यही फजल है कि जाहलों में भेजते? आयत है या नहीं है? क्या गुमराहों में भेज के फजल कहता है? कोई तो है ऐसे कि बिल्कुल रसूल जैसे हैं, उनमें भेजा, तभी तो कहा यही तो मेरा फजल है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह है युती है मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये फजल अजीम है अल्लाह के लिए, क्योंकि वो ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम है। तो ये अजीम फजल किनको मिल रहा है? उम्मीदीन को। कि उम्मीदीन के लिए ज़लाल मुबीन का क्या तर्जुमा होगा? मकसद यह है कि जिस वक्त शजरा तैयबा जनाब इब्राहीम से आप जुदा हुए, ऐ मेरा रसूल, जब तुम्हारा पूरा शजरा नबूवत से निकलकर विलायत की नस्ल में शुरू हुआ, तुम्हें कोई नहीं जानता था, तुम क्या थे? गैर मारूफ थे। अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है। ज़ाला की माने गुम होने वाली, गैर मारूफ। दिलचस्पी नहीं पैदा हुई, मैं जोर पूरा लगाया नहीं, क्या वजह है नहीं कि ज़ालतुल मोमिन, मोमिन की हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है। ज़ाला के माने क्या है? 11-21 माने उधर अभी नहीं जाते, वो वक्त नहीं है अभी। लाहौर मैंने पढ़ा कि अब यह है कि ये ज़ाला के माने गुमशुदा, यानी तुम जब शजरा तैयबा जनाब इब्राहीम से तुम जुदा हुए तो अब तुम अकेला नबी, ये तुम्हारी विलायत में जब ये तुम्हारी तो नूर चल रहा था, तुम गैर मारूफ थे, तुम्हें किसी कोई नहीं जानते थे। तेरी हकीकत क्या है, तेरा नूर क्या है, तेरी जात क्या है, तेरी सिफात क्या है, तेरा कमाल क्या है।
मैं क्या कह रसूल तेरी हकीकतों से लोग वाकिफ नहीं थे। अब जब मैंने तुम्हें भेजा, क्या भेजा? तुम्हें इल्म मबूस किया और इल्म आके तुमने मक्के में ऐलान किया, अब पता लगने लगा अच्छा ये रसूल है। मैं बहुत बड़ी बात करूंगा, देखिए मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपको ताज्जुब बढ़े। अच्छा ये रसूल है। अंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, आप तो समझ रहे हैं जनाब, ये रसूल है। अब जब समझाते समझाते रसूल इतनी देर तक अपने आप को समझाते रहे, फिर भी रसूल का कमाल तो समझ आया, लेकिन आले रसूल का कमाल समझ नहीं आया। फिर अल्लाह ने आले रसूल को समझाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। रसूल अगर ये ना पहुंचाया, अगर आज गदीर पे अली का हाथ पकड़ के बुलंद न किया, मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अब जब रसूल को इतना कुछ कहा गया, रसूल अब ऐलान करो। अब जब हाथ बुलंद किया अल्लाह का, अली का, जनाब रसूल खुदा ने मन कौन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला कहा, फौरन कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मेरी तरफ देखें हैं, जब मिंबर पे बिठा के इतनी देर तक दिखाते रहे अली अलैहिस्सलाम को। अब रसूल जानते थे खुतबा कोई सुने या ना सुने, अली को आज जरूर देखे। आज खुतबा नहीं सुनाना, अली को दिखाना है। आज इसे दिखाना, बिछाया हुआ है मिंबर पर। अब जब जनाब अली बैठे हुए, हर आदमी जो इधर उधर के आपस में बातें नहीं करते, अब जैसे हम अली बैठे। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो झटके दिए हैं किसने दिए हैं? इसीलिए तो दिए हैं जो ही पलट के निगाह गर्मी के होते हुए भी, और फिर आइन दोपहर को अली का हाथ पकड़ के दिखाया। मतलब दोपहर को ये काम क्यों किया? फरमाया इसलिए किया है कोई कमजोर निकाही का उज़्र ना कर सके, तो ये ना कह सके मेरी आंखें कमजोर थी, मैंने अली को देखा नहीं है। अब जब जनाब अली को दिखाया गया, अब कहने लगे बखन बखन भी हुआ। अच्छा अब मारूफ हुए या नहीं? पहले कहाँ थे यार? कितने कहा? मैं खोल के ध्यान ना करूं, कितने थे? बैन कानून में कब्र वफी ज़लाल मुबीन, तुम उस वक्त बिल्कुल गैर मारूफ तसव्वुर में थे रसूल। इनको पता ही नहीं था तू क्या है, तेरी आल क्या है, तू क्या है, अली क्या है, रिसालत क्या है, इमामत क्या है, इताअत क्या है, इत्तिबा क्या है, मालूम ही नहीं था। अब जब तू बेसत के लिए यहां पहुंचा, अब लिहाजा हमने तेरी गुमराही, ये गुमराही का तर्जुमा नहीं है, ये गुमनामी का तर्जुमा। खुदा के लिए आज के बाद तर्जुमे में तरमीम फरमाए, ये उम्मीजीन गुमराह नहीं थे, उम्मीजीन गुमनाम थे, गैर मारूफ थे। सही इतने बड़े इल्मी माहौल में जहां इस वक्त 1200 उलूम राइज हैं, कितने जनाब अली को जानते? 12 इमामों को कितने जानते? इस इल्म के बावजूद मैं क्या कह रहा हूं, तो एक लम्हे क्या वो आवाज थी ना इतनी, एक लम्हे की, तो फिर उम्मीजीन कौन? इसी वजह से उम्मीजीन के लिए तिलावत थी, आले मोहम्मद के लिए इल्म था। बस जल्दी से बात को तय करें, तिलावत कहां करते? तिलावत और तालीम में क्या फर्क है? सहाबा किराम के लिए तिलावत थी, अपनी हस्ब इस्तेदाद वो उनके मानी को अक्स कर सकते थे। आले मोहम्मद के लिए तिलावत भी थी, तालीम भी थी। यही वजह है कि कोई सहाबी ने यह नहीं फरमाया कि रसूल ने मुझे तालीम दी है। जब भी बयान करते कहते समय तो रसूल अल्लाह, मैंने रसूल से ऐसे सुना, रोवी यार रसूल अल्लाह है।
जो भी सहाबा के फरमाते हैं ना, क्या कहते हैं, मैंने रसूल से ये कहते सुना। मालूम हुआ सुनना इस बात की दलील है, तिलावत हुई ना कि तालीम हुई। रोवे या रसूलुल्लाह, सरकार से ये रिवायत हुई, या रवा रसूलुल्लाह, सरकार ने ये रिवायत फरमाई। तो जब सहाबा किराम की बात आती है तो रोविया और समेतों की बात आती है। जब अली की बात आती है फरमाया अल्लामनी रसूलुल्लाह है इल्मन ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे इल्म ऐसे दिया जैसे कबूतर बच्चे को चोगा देता है। कैसे कि अल्लामनी रसूलुल्लाह, रसूल ने मुझे तालीम दी। तो रसूल के बाद तालीम लेने वाला कौन है? सरकार अली इब्न अबी तालिब। तो फिर उम्मीजीन का उम्मीजीन का पहला फर्द बतौर इमाम कौन हो जनाब? इसीलिए उनका लक़ब अमीरुल मोमिनीन है। बस सरकार जल्दी से चूंकि वक्त के हिसाब से कि चौथा इमाम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बीबी है जिसका नाम है हुब्बाबा वालिबिया, हुब्बाबा वालिबी, सही हुब्बाबा उसका नाम है। बाद में किसी ने जुब्बाबा लिखा लेकिन वो लफ्ज़ गलती हो सकती है जेर वाले की, उसने नुक्ता से डाल, लेकिन 3 4 5 किताबों में मैंने हुब्बाबा की लफ्ज़ सही मुझे फरमा देंगे, हुब्बाबा ज्यादा मुझे लगा। हुब्बाबा वालिबिया, इसकी उम्र 113 साल थी। मैं क्या कह रहा हूं 113 साल। अच्छा ये जनाब अली अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। ये जनाब अली का ज़माना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक इसके ज़माने को इसने देखा है। जनाब अली से लेकर 8 इमामों की ज़ियारत की और दुआए इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वजह से। अच्छा जनाब ये हुआ कि हुबाबा कहती है कि मैं इसमें और भी वाक़या मैं ये सुना देता हूँ कि मैं जनाब अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में है, सरकार आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रही थी। मैं कुर्बान हो जाऊं जो आलमीन की इस्मतों का मुहाफिज हो उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। चलते हुए जनाब अली रुके, सरकार ने फरमाया हो बाबा ये कंकर उठाओ। पत्थर ये कंकर था, बीबी ने कंकर उठाया। जनाब हुब्बाबा वालिबिया ने कंकर के माने पत्थर भी हो सकता है उठाया, सरकार को पेश किया। सरकार ने अपनी अंगुश्त मुबारक, ये जो अंगुश्तरी थी उसकी मुहर लगाई, पत्थर पे मुहर लग गई। फरमाया जो इस पत्थर पे मुहर लगाता जाए समझना वही इमाम है। मैं अच्छा ये दूसरा पहलू भी है, उधर नहीं जाते। ये इस पे जो भी लगाता जाए वही इमाम हो। ये हुबाबा अपने पास रखना, मेरे बाद जो भी इमाम होंगे ना उनके पास ले जाना, जो भी मोहर लगाता जाए लगाते। ये अब सरकार की शहादत के बाद जनाब हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आए, इसको बुला के इमाम ने फरमाया हुबाबा मेरे बाबा वाला पत्थर लाओ ताकि मैं उस पर मोहर लगा दूं। ऐसे इमाम होने चाहिए ना बाबा, ऐसे ढूंढने चाहिए। इसके बाद सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, उस इमाम ने फरमाया हो बाबा वो मेरे बाबे वाला पत्थर लाओ मैं तुम पे मोहर लगा दूं। मोहर लग गई। अब आया इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना। ये काफ़ी बूढ़ी हुई, बूढ़ी तो हो ही जाता है ना, आखिर आदमी जो हुआ ना जनाब 60-70 साल या जितनी थी बूढ़ी हो गई। अब जो बूढ़ी हुई लाखिर की लफ्ज़ है कि घबरा के चल रही थी। कुर्बान हो जाऊं, चूंकि घबराते हुए जब इमाम के करीब आई, जो इमाम ने अपने तक पहुंचते हुए से घबराते हुए देखा, नजर की जवान हो गई। अल्लाह जाने कैसे करीम है, नजर की नजर फरमाई, जवान हो गई। अब जो जवान हुई उसने है कि मैं कितनी वो थी, फरमाया मैंने तुम्हें जवान कर दिया है, पत्थर लाओ ताकि मैं इस पे अपनी मोहर लगा दूं। पत्थर लाया। अभी सरकार इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मोहर लगा दी। फरमाया इसके बाद तुम इमामों को ज़ियारत करोगे, हमने तुम्हें जिंदगी दे दी है। मालूम है जो हयात में भी कादिर हो उसे इमाम कहते हैं। अब ये कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, इमाम ने बुला के फिर मैंने मोहर लगाई, फिर इमाम
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। मैं जुमला कहूँगा लेकिन मसाइल चूँकि पढ़ना नहीं, इसीलिए सरकार ने, वो तो मदीने में ही थे ना, तो सरकार ने मोहर लगा दी। जब 7वें इमाम का ज़माना आया, खुदा गवाह अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद जब इमाम आए ना, इसे बुला के कहा, खुदा जाने फिर मैं तुझे मिलूँ ना मिलूँ, पत्थर ले आता कि मैं मोहर लगा दूँ। मेरा कैदी इमाम इसे बुला के, अल्लाह अकबर, 14 साल कैद में रहेगा नहीं रहे, अजरकुम अल्लाह, आके इन्हें बुलाया और फिर इमाम ने मोहर लगाई। और इसके बाद जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, इमाम ने बुला के जब मोहर लगाई, फरमाया 8 हो गए, हो बाबा अब तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर, फौरन ही इमाम के कितने 90 दिन की लफ्ज़ भी है, 9 महीने की लफ्ज़ भी है, 9 दिन की भी लफ्ज़ है, जितने हैं, जितनी तसव्वुर फरमाए इमाम के हुक्म के बाद इस बीबी का इंतकाल हो गया। ये वो हैं कि जिन्हें खालिक ने अपना नुमाइंदा बनाकर, दुआ का मरकज़ बनाकर तरीक़ा दुआ जो है वो बता रहे हैं। मेरा इमाम परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जो एहतमाम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल करो। हाँ जी, हाँ, ये इंशाअल्लाह मुहर्रम में जो आएगा 21 सफ़र से 30 सफ़र तक, इस दफ़ा सही विरासत हुसैन साहब के तरफ से जो पिछले साल भी 10 मजालिस हुई थी इसी जगह, उसूल दीन पर 2 मजलिसें हर उसूल पर मैंने पढ़ी थी। अब इस दफ़ा होगा 10 मजलिसें फ़ुरूए दीन पर, कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है। फिर कहेंगे नमाज कौन है, रोज़ा कौन है। ये ध्यान करें। तो इंशाअल्लाह ये फिर 10 दिन हम इसी फ़ुरू पे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, कल सिंह काम कल मजलिस होगी CVO 79, कल इंशाअल्लाह 12 बजे मैं वहाँ पढ़ूंगा सिंह के घर, यही करीबी है इनका है। कल मजलिस होगी इनके घर में 12 से 1 बजे मैं इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। ये मजलिस जो है आज विरासत हुसैन साहब के जितनी मरहूमीन हैं उनके इसाल के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन।